Hello students, today we are going to start chapter 2. I hope you all completed your chapter 1 force. बच्चों चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले बीच में एक पेज का गैप दे दीजिएगा because when we will solve numericals so we will write some important points and that points will help you for solving numericals. So leave one blank page then start chapter 2. Now chapter 2 is work, energy and power, and first topic is work. What is work? Work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. That is, force acting upon a body bring about its displacement. In first chapter we discuss about force. देखिए कोई ऑब्जेक्ट है. अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रिजिड बॉडी में तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा. सो देयर वाज टू कंडीशन. ए बॉडी इज़ फ्री, बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स and then there will be linear motion. And if body will be fixed at a point, so this body will rotate about any axis. So there will be rotational motion. Means by applying force, two type of motion will be possible: linear motion and rotational motion. And when there will be rotational motion, for that a torque. देखिए ऑब्जेक्ट है, उसका एक पॉइंट फिक्स है, उस पर हमने रोटेशनल मोशन कराया था. सो देयर वाज रिक्वायर्ड अ टॉर्क टॉ फॉर रोटेटिंग एनी ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन देयर विल बी ट्रांसलेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट में अगर क्या होगा आपका रोटेशनल मोशन नहीं ट्रांसलेशनल मोशन होगा, इट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव. नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इनिशियल पोजिशन पे आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी. सो ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस and this shorter distance means a straight line we will draw and the distance between initial position and final position, and that shorter distance known as displacement. So the product of this applied force with the displacement, this amount known as work done, W. So what is work done? Work done is the force into displacement. Means when there will be linear motion, so object will travel a distance and minimum distance between initial and final position, that is displacement, and the product of force with displacement, this quantity known as work done, W. Okay. Now when we will apply force F, तो वहाँ पे जब दो मोशन होंगे फोर्स अप्लाई करने पे पॉसिबल है कि दो तरह के मोशन हो, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. तो ये फोर्स का दिस फोर्स विल बी ब्रेक इनटू टू पार्ट and the base component will be F cos theta, this base component, and that component will be responsible for linear motion. That component of force will be F cos theta, and the component of force for rotational motion, rotational motion के लिए force का जो component responsible होगा that will be F sin theta, F sin theta. Means we are applying force F और उस फोर्स का कुछ हिस्सा लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ हिस्सा आपका रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मीन्स एफ का कुछ पार्ट बॉडी को आगे मूव करने की कोशिश करता है और फोर्स का कुछ पार्ट आपका क्या करता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो आपका रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करता है. सो द फोर्स
रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन, फोर्स का वो कंपोनेंट जो आपका लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट कंपोनेंट, दैट बेस कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, and that component is F sin theta. So work done W is the force into displacement. वर्क डन हमारा जो हम फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हियर वी आर टेकिंग एस, सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर वी आर टेकिंग एस. तो लीनियर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ओनली दैट अमाउंट ऑफ फोर्स will be multiplied with the displacement. See here we are writing f cos theta. Why we are writing f cos theta? Because if we are, see देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोर्स f अप्लाई करके पुल कर रहे हैं एंगल थीटा पे, सो दिस बेस कंपोनेंट विल बी f cos थीटा. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि हमारा बेस कंपोनेंट आपका cos थीटा टर्म होता है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा होता है. सो बेस कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी f cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी f sin थीटा. Now for work done for linear motion, only this f cos theta term will be responsible. So in place of force we will write here f cos theta. So W will be equal to f cos theta into displacement s. And we have a formula. Here we have f cos theta into s. AB cos theta is the dot product of vector A and vector B. Similarly, f cos theta s will be equal to the vector f dot vector s. See here we are writing vector f dot vector s. Why we are writing here vector f dot vector s? Because we have formula in mathematics, vector A dot vector B equal to AB cos theta. So f cos theta s we will write vector f dot vector s. एंड दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. सो वर्क डन W इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट विल बी न्यूटन मीटर. यूनिट ऑफ फोर्स विल बी न्यूटन and unit of displacement will be meter. So unit of work done W will be equal to Newton meter and this amount is known as 1 joule. And CGS unit of work is dyne centimeter and it is known as R. Now we have to find relation between SI unit and CGS unit of work done W. SI unit of work done is joule and 1 joule is equal to 1 Newton meter. एंड 1 न्यूटन वी नो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन निकाला था. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर. सो टोटली हियर वी विल गेट 1 joule equal to 10⁷ डाइन सेंटीमीटर and this value डाइन सेंटीमीटर is equal to erg. So 1 joule is equal to 10⁷ erg. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपका 1 मार्क में आता है एग्जाम में. दे विल आस्क रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क और SI और रिलेशन बिटवीन SI और CGS यूनिट ऑफ force or it can ask in term of find the relation between SI and CGS unit of work. So remember this relation, it is very important. Now work done can be positive, negative or zero. How work done will be positive, negative and zero? See, we have formula work done W is equal to F cos theta, F cos theta, and we know cos theta, value of cos theta will be equal to from -1 to +1. हमारी cos theta की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 तक होती है. एंड व्हेन cos theta will be negative, work done will be negative. And when cos theta will be positive, work done will be positive. When cos theta, value of cos theta will be 0, work done will be 0. So when थीटा विल बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री में क्या होती है? पॉजिटिव होती है. सो ऑन दैट केस वर्क डन W विल बी पॉजिटिव बिकॉज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव. व्हेन थीटा एंगल विल बी बिटवीन 90 degree to 180 degree.
So work done will be negative. Why? Because when theta will be between 90 degree and 180 degree, and for 90 degree to 180 degree cos theta will be negative, so work done will be negative. And when theta will be 90 degree, so value of cos theta will be 0. We know cos 90 degree equal to 0, so for that case work done W will be 0. Now here we have one more case when displacement will be 0. वर्क डन देखिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो जाएगा. बट इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एफ एंड एस. आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. इफ डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो वैल्यू ऑफ एस विल बी जीरो, मीन्स ऑब्जेक्ट में हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट देयर इज नो मोशन, या फिर उसकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रही. ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट ए पे है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. सो आपका वर्क डन क्या होगा? ऑन दैट केस वर्क डन W विल बी इक्वल टू 0. So it was about different cases of work done, how work done will be positive, negative and 0, and here we will take a special case work done by the force under the gravity. मीन्स ऑब्जेक्ट आपका अंडर द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट फ्री, इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है. ऑब्जेक्ट या तो ऊपर से नीचे ग्राउंड पे आ रहा है या फिर ग्राउंड से हम इसको ऊपर फेंकते हैं. तो देखिए इस केस में क्या होगा, योर एफ विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू एम जी, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाइट एच. So work done W will be equal to force into displacement, and now this force is equal to mg and displacement is equal to h, so W will be equal to mgh. So it is work done by the force under the gravity. क्या आपका फ्री फॉल वाला कंडीशन है, फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो फिर उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? तो ऑन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी इन टर्म ऑफ हाइट h एंड फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg, एंड देन फाइनली वी विल गेट वर्क डन W इक्वल टू mgh. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमने फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, दैट मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप. देन वी डिस्कस अबाउट रोटेशनल मोशन, कि आपका रोटेशनल मोशन होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए होगा, ठीक है. और रोटेशनल मोशन की बात थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. देन नाउ इन दिस चैप्टर 2 फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्क डन. अभी आपका रोटेशनल मोशन हुआ तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ. लीनियर मोशन हुआ तो लीनियर मोशन में आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया फोर्स अप्लाई करके. Then multiplication of applied force with the change in position means that is displacement, that amount will be equal to work done W. Now work done W, अब आप काम कर रहे हैं लेकिन काम करने का कहते हैं एक स्पीड होती है, एक रेट होता है कि कितने टाइम में आप कितना काम कर रहे हैं. जो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? ज़्यादा काम को कम टाइम में करेगा. अभी दो आदमी हैं, उसमें आपको डिसाइड करना है कौन कितना पावरफुल है. तो उसके लिए क्या करोगे? आप एक कोई भी टास्क दोगे. टास्क देने के बाद हम उन दोनों से कहेंगे कि जो इस काम को जल्दी कर लेगा मीन्स वो ज़्यादा पावरफुल है इस काम को करने के लिए. सो व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी काम को हम किस रेट से कर रहे हैं, that will be known as power. जो पावरफुल पर्सन होगा वो ज़्यादा काम करेगा कम टाइम में. सी हियर वी हैव पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम. टाइम इज इन डिनोमिनेटर. नाउ पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. काम ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा, बट अगर उसी काम को करने में आप टाइम ज़्यादा लगाओगे तो आप कम पावरफुल हो. बिकॉज पावर इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू वर्क डन एंड पावर इज़ इनवर्सली प्रपोजनल टू टाइम टेकन. तो जो पावरफुल पर्सन होगा वो क्या करेगा? वो ज़्यादा काम को कम टाइम में करेगा.
अब जो काम को करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है उसको कहोगे उसके पास पावर कम है, तभी तो उस काम को स्लोली स्लोली कर रहा है। और जो किसी भी काम को जल्दी जल्दी कर देगा ज़्यादा पावरफुल है। सो व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी भी काम को आप कितने टाइम में कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो, दैट उसका जो रेशियो होगा, दैट रेशियो विल बी equal to value of power P. Now W is a scalar quantity and time is also a scalar quantity. So this power is a scalar quantity. Now what will be SI unit of power? Work done का यूनिट आपका जूल होगा एंड as a unit of time will be second. So work done of unit of power will be joule per second and this value will be equal to watt. Power is the rate of doing work, so the unit of power will be equal to unit of work done W and unit of time T, and this value will be equal to joule per second and this value known as watt. Its CGS unit will be अर्ग पर सेकेंड. देखिए जूल के प्लेस में आपका अर्ग आ जाएगा एंड टाइम यूनिट ऑफ टाइम विल बी सेकेंड, सो इट सेकेंड विल बी सेम. So CGS unit of power is erg per second. Now here we will find SI and CGS unit of power. 1 watt is equal to 1 joule per second and 1 joule will be equal to the, and this value will be equal to the 10 the power 7. We know 1 joule equal to 10 the power 7 erg. अभी हमने वर्क डन में रिलेशन हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड आउट किया था. 1 joule is equal to 10 the power 7 erg. So this 1 watt will be equal to 10 the power 7 erg per second. We will find here one more relation between power P, force F and velocity V. How we will find this relation? We know work done W is equal to force into displacement. Work done W क्या होता है? Equal to force into displacement. Now power P is equal to W by T, so we will divide this F into S by T, then we will get power P equal to Fs by T, and we know the displacement upon time is equal to velocity V. So in place of S by T we will write here V, and then we will get formula P equal to F V. ठीक है, हमने पता है वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टी. तो ये वर्क डन की जो वैल्यू है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने टी से डिवाइड कर दिया है एंड इन प्लेस ऑफ एस बाय टी वी विल राइट वी. देन वी विल गेट रिलेशन पावर पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज indicated by V. So it was about work done and power. In next video we will discuss about energy. Thank you.